Hello to all class 9 students and class, I believe that you all are doing great. So class, we will do economic applications, right? And the chapter is lesson number 4, types of economies. Right, so we will be doing the difference between socialist, capitalist and mixed economy. So basically what we are going to do today is the difference between socialist, capitalist and a mixed economy. So here we are going to write the base, right? Here is going to write the capitalist. Here we'll write down socialist. And this will be placed for the mixed economy. Right? So we are going to read the differences between these three types of economies. So starting with base, starting with the first difference. The first difference is ownership or ownership of what? Ownership of means of production. That means कि जो means of production है, land, labor, capital, entrepreneur, जो बाकी raw material है, सारे के सारे किसके होते हैं? So ownership किसकी रहेगी in capitalist economy? It will be of the private entrepreneurs. In the socialist economy, it will be of the government. And in the mixed economy, it will be of both private and government. So, as far as the first difference is concerned, the first difference is regarding ownership. So, ownership of what? Ownership of factors of production or means of production. So, means of production, आपकी capitalist economy में आपके जो means of production होते हैं वो किसके होते हैं? Private के होते हैं. मतलब private people are the owners of means of production and they can use these means of production in the production of whatever they want. And in the socialist economy, the means of production are owned by government and government uses them for the maximum welfare of people. And in mixed economy, the means of production is of both the private and the government. The second difference is the solution of the central problems. So, solution of central problems. So, in the case of capitalist economy, price mechanism is price mechanism. Price mechanism is the way through which you can solve the problems, the central problems of an economy. What are the central problems? What to produce, how to produce and for whom to produce. तो ये जो तीन problems है ये price mechanism के द्वारा solve किए जाते हैं. In the socialist economy, the problems are solved by economic planning. Economic planning is done, and with the help of the economic planning, the solutions of the central problem are done. In the other one, the price mechanism and the economic planning both. In the mixed economy, the solution of central problems are done by price mechanism and economic planning both. Right? So, in the mixed economy, this is how the central problems are solved. The third is the objective of production. Third is your objective of production. Now, what does this mean? Objective of production means that why we are doing production? What is the main reason behind production? So, the objective of production means that in the case of capitalist economy, we are doing it for profit motive. We are doing it for what? Purely profit motives. Whereas in the socialist economy, welfare of the people. Welfare of the people is the main reason. Whereas in the case of your mixed economy, both welfare as well as profit motive. But profit motive is, but the welfare is the primary one. Welfare and profit motive are both are the major reasons for production, right?
So the objective, as far as the objective is concerned, the main objective in the capitalist economy behind the production is your profit motive, whereas welfare in the socialist economy and welfare and profit motive both in the mixed economy. Third is your income. Third is the distribution of income. Distribution of income. So what is the gap between the rich and the poor? मतलब क्या income का जो distribution है वो बराबर हो पाता है क्या? Rich और poor के बीच में gap है कि नहीं है? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा gap रहता है, मतलब unequal distribution है. क्या है यहाँ पे? unequal distribution. ठीक है? बल्कि socialist economy में क्या होगा? equal. आपको socialist economy में कोशिश की जाएगी किसकी? equal distribution की जाएगी. यहाँ पे equal distribution की कोशिश की जाती है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाता है ऐसा नहीं है. और यहाँ पे नॉट हाईली अनइक्वल, राइट. सो एज फार एज दिस इज कंसर्न, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? बहुत अनइवन रहता है, अनइक्वल रहता है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहेगा, रिच के बीच में, पुअर के बीच में. सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश की जाएगी, मतलब पुअर और रिच के बीच में गैप कम किया जाएगा. जितना भी देश इनकम कमाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाएगी. मिक्स्ड इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंस होता है इक्वल रिच के बीच में, पुअर के बीच में, या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो कम से कम होता है, ये बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, राइट. द फिफ्थ डिफरेंस इज कॉम्पिटिशन. अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो वेरी हाई कॉम्पिटिशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यू हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव टू सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट एट द लीस्ट प्राइस एट द हाईएस्ट प्रॉफिट at best quality, so they try to compete. They compete, they spend a lot of money on advertising and other competing methods, right? So there's a high degree of competition here, right? And in this case there is lack of competition. In the government case, lack of competition. ठीक है, यहाँ पे कमी होती है कंपटीशन की. whereas in the mixed economy low degree of competition is there. low degree of competition. So in the case of the mixed economy, both are working there, private as well as the public companies are working there. So the degree of competition is what? Comparatively it is low, right? The next difference is your consumer sovereignty. Sixth is consumers sovereignty. SOVERE sovereignty IGNTY. So यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है कंज्यूमर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो यहाँ पे कंप्लीट कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट इज द कंप्लीट सोवरेनिटी. इन दिस केस आपका सिक्स वाले के केस में क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट वाले केस में नो सोवरेनिटी. यहाँ पे कोई कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि सबके लिए आपको प्रोडक्शन करना है. यहाँ पे लिमिटेड रहेगी. यहाँ पे क्या रहेगी? लिमिटेड सोवरेनिटी, राइट. So as far as importance is given to the consumer, so the importance is going to be of high degree. In the case of capitalist economy, all the production, all the decision regarding production takes around are consumer oriented. Whereas in the case of socialist economy, the production is basically done of necessary goods, and production is done in such a manner that all the necessary items can be produced and at the best price they can be given to the public. So no consumer sovereignty is there. In case of mixed economy, limited consumer sovereignty is there. So these are the 6 differences. Let's go to the 7th one. So as far as the 7 difference is concerned, it is class conflict. 7 difference, class conflict. क्लास कॉन्फ्लिक्ट से मतलब है क्या? अलग अलग क्लासेस बन जाती है क्या? अमीर क्लास, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, पुअर क्लास, ऐसा कुछ बन जाता है. तो हाँ, इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ high degree of class conflict. So the class conflict is very high class conflict.
यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गैप रहेगा, अलग अलग क्लासेस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी केस में नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोडक्शन होगा क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, लो डिग्री ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी केस में आपकी गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन कर रही है, प्राइवेट भी प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या है, एक तरह का लो क्लास रहेगा, क्योंकि जो क्लास डिफरेंस क्या प्राइवेट वाले क्रिएट करेंगे उसे गवर्नमेंट वाले क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे। द एट्थ डिफरेंस, जो आठवां डिफरेंस है इनके बीच में, वो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या फटाफट चेंजेस आ सकते हैं, क्या अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत हाई डिग्री ऑफ हाई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, इस केस में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कमी रहती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे कमी रहेगी फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। और उस अगले केस में क्या रहेगा आपका, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे भी क्या रहेगी, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे मतलब है कि क्या समय के अनुसार या अगर तुरंत कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस तुरंत लाए जा सकते हैं कि नहीं लाए जा सकते। तो इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में, वो सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से चीजों को देखते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। बट इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी सब गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, और एक पर्टिकुलर प्लानिंग होती है, टाइम लेके चीजों को किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो इस केस में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्राइवेट सेक्टर एंड लो डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर and low degree in public sector, right? The ninth difference is your inducement to work, inducement to work। मतलब यहाँ पे जो लोग के अंदर काम करने की फीलिंग होती है, या जो काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, काम करने के जो जोश होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इंड्यूसमेंट टू वर्क कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत हाई होता है, ठीक है, तो हाई इंड्यूसमेंट टू वर्क। हाई इंड्यूसमेंट टू वर्क क्यों रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या होता है, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको पेमेंट्स मिलता है, आपको तारीफ मिलती है, आप करना चाहते हो उस काम को, क्योंकि आपको उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उसके लिए। बट इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्या रहेगा काम करने का, वेरी लो, ठीक है, यहाँ पे लोग काम करना नहीं चाहते हैं, या आप बोल सकते हो होता ही नहीं है, डज नॉट एक्सिस्ट, ये भी बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे रहता ही नहीं, लोग काम करने की फीलिंग रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो काम करे ना करे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो उनको पैसा तो मिल ही जाएगा, प्रमोशन भी मिल ही जाएगा, सब कुछ चलता रहेगा, बढ़िया, कौन पूछता है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। या तो बहुत लो डिग्री ऑफ इंड्यूसमेंट टू वर्क है, लोग बहुत कम काम करना चाहते हैं, या तो फिर वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज तो मिल ही रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में होने का ये फायदा जरूर होता है। अब इन द केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन द केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लो, लो। सो इन द केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लो। इसका मतलब क्या है कि जो आपका काम करने की यहाँ पे जो एक अंदर से होता है कि मन है काम करने का, या आप काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मिक्स्ड इकोनॉमी केस में कम रहेगा। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बोथ आर वर्किंग टुगेदर, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करना चाहेंगे और पब्लिक सेक्टर में लोग काम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, लो नाम दिया गया है। तो ये क्या आपके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस रिगार्डिंग व्हाट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो जो 7th वाला था वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यहाँ पे अलग अलग क्लासेस क्रिएट हो जाती है। क्लासेस से मतलब है इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, ऐसी क्लासेस क्रिएट हो जाती है। तो यस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, यहाँ पे क्लासेस के बीच में झगड़ा होता है अलग अलग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, हर चीज गवर्नमेंट करती है, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं रह जाती है। बल्कि मिक्स्ड इकोनॉमी केस में क्या है, एक लो डिग्री रहता है, झगड़ा रहता है पर उसकी डिग्री कम रहती है,
ठीक है। देन 7th इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, एडजस्टमेंट्स, चेंजेस कितने आप ला सकते हो, क्या फटाफट कोई चेंजेस आ सकते हैं, अगर तुरंत समय की कोई जरूरत है तो क्या उस हिसाब से चेंजेस लाए जा सकते हैं। यस, तो इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी की रहती है, जो भी चेंजेस लाने होते हैं तुरंत ला दिए जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं हो पाता इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। दैट मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि हर चीज प्लान्ड वे में होती है तो इट टेक्स टाइम, इसलिए जल्दी से अगर कोई चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। Whereas in the case of mixed economy, private sector में there is going to be flexibility, but in the case of the public sector there is not going to be any kind of any flexibility. Inducement to work का मतलब है कि आप काम करने के अंदर से फीलिंग होना। सो इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अंदर से काम करने की जोश बहुत ज्यादा रहता है लोगों के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि वो रहता है क्योंकि वो लोग अगर काम करते हैं या अपने टारगेट्स पूरे करते हैं तो उनको उसका फल मिलता है, जैसे कि सैलरी में बढ़ावा मिलता है, या कहीं घूमने जाने के लिए उनको टिकट्स मिल सकते हैं, या उनको पहचान, अवार्ड्स, प्राइजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना काम करने में बहुत मन लगाते हैं। Where in the case of socialist economy आपको मालूम नहीं है सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे काम करने का लोगों के अंदर से लगन नहीं होती है, क्योंकि आप काम करो न करो आपको जो मिल रहा है वो उतना ही मिलेगा। अगर आपको सैलरी 60,000 मिल रही है तो 60,000 ही मिलेगी इफ यू आर वर्किंग एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, तो क्योंकि टारगेट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे लोगों को पहचान नहीं मिल पाती है, तो काम करे ना करे सब बराबर, तो मतलब गधा घोड़ा बराबर। इन द केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो ढंग से काम होगा, इंड्यूसमेंट होगा वर्क को लेकर के, लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं होगा। सो रिलेटिवली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू डेवलप्ड एंड अंडरडेवलप्ड कंट्री के फीचर्स वी आर गोइंग टू do in the types of economy. Till then, you keep completing your notes and I'll be seeing you in the next video. Till then, take care of yourself.